100% satisfied consumer. Okay, so utility depends upon the quality. If the quality of goods is good, then we will get the 100% satisfaction from that particular product. So utility is the thing which satisfy the need of human being. So जितना भी उसको जरूरी है वो उतना वो यूटिलाइज करेगा. कल मैंने एक केक्स का एग्जांपल दिया था आपका, ठीक है. मेरे खाने की कैपेसिटी कितना है और मैं सेटिस्फाई होने तक ही खाऊंगा. That is called as utility of that particular demand or utility of the demand. So here to estimate the demand of the product as an organization, we need to understand the demand of my product into the market. So suppose this is the demand of my product per month, per day, or per week. Then what will be my demand in the future that I have to estimate? Because accordingly, on the basis of future estimation, I have to make the estimation or the arrangement of my resources. Getting this? I have to utilize my resources. I have to borrow the resources. I have to hire the resources. I have to manage the resources for the production activities. So there should be the linkage, or there should be some of the connection between your utilities of consumer, and on the basis of this utility of consumers, you will be understanding, you will be deciding the total product of your total demand of your product, and accordingly you manage your sales. तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये यूटिलिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, देन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखे थे, कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी. Then we had seen, so this is very much important because from second unit to fifth unit हर टाइम हम लोगों की ये टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी आने वाला है. अभी देखिए टोटल यूटिलिटी कैसे है. लेट अस हैव सम लुक अबाउट द टोटल यूटिलिटी, because I'm going to utilize these words again and again, so you should not be confused about this kind of words. So what is the difference between total utility, marginal utility, and the average utility? You must understand. It is, again I'm just repeating it, we have already discussed this in the last lecture, but to this lecture also I'm going to utilize these words. So let us see once again. The total utility means what? It is the total sum of satisfaction from the consumption of specific goods or services. एक एक चीज खाने के बाद मुझे कितना जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है. सो दैट इज समथिंग अबाउट टोटल यूटिलिटी ऑफ डिमांड. पर्टिकुलर चीज, फॉर एग्जांपल मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन आने के लिए किसी को 5 केक की जरूरी रहेगी, किसी को 5 चॉकलेट की जरूरी रहेगी, किसी को 5 आइसक्रीम की जरूरी रहेगी, ठीक है. अगेन दिस टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट इट इज द एडिशन ऑफ दैट sum of products, how much products you are going to consume, which will give you 100% satisfaction. जब तक मैं फुल्ली सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक वो मैं प्रोडक्ट कंज्यूम करो. Getting this? For example, when I go into the for example in Cotton King to purchase a shirt, that time how many shirts I am going to purchase? Whether I am one, एक शर्ट में मेरा सेटिस्फेक्शन होगा, एक शर्ट और एक ट्राउजर में मेरा सेटिस्फेक्शन हो सकता है, एक दो शर्ट दो ट्राउजर में हो सकता है, 4 शर्ट 5 शर्ट. मीन्स व्हाट? जब मैं सेटिस्फाई होके वो फैक्ट्री आउटलेट के बाहर निकलूंगा तब तक का मेरा सेटिस्फेक्शन, दैट इज सेटिस्फेक्शन लाने के लिए मैंने कितने क्वांटिटीज परचेस किए हैं, कितने क्वांटिटीज हायर किए हैं, दैट टेल्स अबाउट द टोटल यूटिलिटी. So total utility equal to utility of one product, utility of two products, utility of three. In this way, you can add up the utility of n number of products. That is something about total utility. Okay. So let us not be confused on total utility and marginal utility. Now see what is the marginal utility? It is the additional satisfaction gained from each extra unit of consumption. So additional satisfaction, for example, by consuming one product, for example, or by purchasing one product. For example, मैं स्पोर्टिंग किंग में गया और एक शर्ट लिया,
उसके बाद एक शर्ट लेने के बाद वट एवर इज माई सेटिस्फेक्शन लेवल, मुझे कुछ बैक ऑफ द माइंड में ऐसा लगा कि यार चलो ये दूसरा शर्ट भी बहुत मुझे अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है, प्राइस भी कम है, डिस्काउंट चल रहा है, चलो और एक शर्ट क्यों नहीं लेते। गेटिंग दिस। तो अगर मैंने वो शर्ट लिया तो मेरा पहला वाला जो पहला एक शर्ट लेने के बाद जो कुछ मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल थी उसमें क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। गेटिंग दिस। So you will be more satisfied if you purchase two shirts. समझ में आ रहा है। तो दैट इज समथिंग अबाउट एडिशनल सेटिस्फेक्शन। एक केक खाने के बाद मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल और दूसरा केक खाने के बाद मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल। समझ में आ रहा है। सो दिस इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन। पहले तो मेरा कुछ तो सेटिस्फेक्शन लेवल था, तो उसके बाद मेरा नया प्रोडक्ट लेने के बाद दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद वाला मेरा एडिशनल एडिशन इन सेटिस्फेक्शन लेवल गेन मुझे मिल कब, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हायर करने के बाद, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट परचेस करने के बाद, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद जो मुझे मिलती है ना, दैट इज समथिंग अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। और ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, देखिए, इट डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस विथ, marginal utility decreases with each additional increase in consumption of goods। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बाद, पर्टिकुलर स्टेज के बाद क्या होता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आई वॉज वेंट टू द कॉटन किंग टू परचेस वन शर्ट, तो मेरा नीड कितना शर्ट की थी, वन। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार और एक शर्ट लेते हैं, तो मैंने और एक शर्ट ले लिया। मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल था तो थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। नाउ बाय परचेसिंग टू शर्ट्स माय satisfaction लेवल बिकम्स 100%। जितना भी मेरे पास पैसे थे और मेरे पास पैसे थे और जितने भी मेरी नीड थी उतना तो शर्ट मेरे दो हो गए, ठीक है। अभी अगर कोई शॉपकीपर मुझे बोलता है कि चलो सर ये भी शर्ट आप लीजिए, जिसका मुझे उतना जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है, जितना मुझे उतनी जरूरी नहीं, मुझे दो ही शर्ट की हाईएस्ट जरूरी थी, उसमें मैं फुल सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन किसी और के कहने से, किसी और के कहने से, या मुझे ही लग गया कि चलो और एक टी शर्ट लेते, किसी और के कहने से, इफ आई एम परचेसिंग वन प्रोडक्ट एट दैट टाइम, my satisfaction level is not going to increase, my satisfaction level is not going to increase because I am fully satisfied। Getting this? So if I go to purchase more and more units, तीन शर्ट, चार शर्ट, पांच शर्ट लेने से मेरा मार्जिनल सेटिस्फेक्शन लेवल, मार्जिनल यूटिलिटी लेवल, इट गोज ऑन डिक्रीज। आफ्टर सर्टेन लेवल वो क्या होती है, नीचे 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 आती है। तीन शर्ट लेने के बाद और नीचे आ जाएगी, चार शर्ट लेने के बाद फिर नीचे नीचे डाउनवर्ड ट्रेन को आ जाएगी। So that is the meaning of this sentence. It decreases with each additional increase in the consumption of food। जितना भी ज्यादा कंजम्पशन आप करके जाओगे ना, उतना उसका इम्पोर्टेंस, उसी प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस मेरे लिए कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। दैट इज समथिंग अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। And how, don't confuse in between marginal utility, how to calculate marginal utility and how to calculate the total utility। तो marginal utility कैसे calculate करते हैं, देखिए, change in a total units, change in total utility divided by change in the total quantity, change in the total utility divided by, so your total utility is here। तो टोटल यूटिलिटी मेरा पहले कितना है, एक क्वांटिटी परचेस करने के बाद और दो क्वांटिटी परचेस करने के बाद वाला मेरा टोटल यूटिलिटी, ओके। एंड चेंज इन द टोटल क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी, पहले एक थी अभी दो हो गई, सो दैट इज द वन प्लस वन इज इक्वल टू टू हो गई, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। यूटिलिटी चेंज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी चेंज इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी। एंड सी अबाउट द एवरेज यूटिलिटी। Average utility is the one can obtain by it obtain it by dividing the total units of consumption, कितने क्वांटिटी हम लोगों ने कंजम्पशन किया है, by total number of units। अवेलेबल 10 शर्ट्स थे, उसमें से 4 महीने थे, समझ में आ रहा है कंसेप्ट। अवेलेबल
4 केक थे, उसमें से मैंने 2 यूटिलिटी, दैट इज समथिंग अबाउट एवरेज यूटिलिटी। उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा। उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि जैसे भी कोई प्रोडक्ट का कंजम्पशन एक्सेस होता है, उसके हिसाब से उसका इम्पोर्टेंस कम होता है। इम्पोर्टेंस कम होता है, इसका मतलब उसकी नीड भी मेरे लिए कम होती है। और due to decrease in a need, marginal utility decreases. So this is the formula by which we had calculated marginal utility in the last lecture. Okay, तो जस्ट ध्यान में रखिए कि कोई भी प्रोडक्ट एक्सेस हो गया तो मेरे लिए उसका इम्पोर्टेंस कम होता है। इसके लिए ये एग्जांपल भी मैंने एक दिया था। अगर आप लोग ज्यादा हंग्री हो तो एक प्लेट खा सकते हैं, ठीक है। तो एक प्लेट आपके हंगर लेवल मैक्सिम सेटिस्फाई कर सकती है। अगर दूसरा भी एक प्लेट खाया तो क्या हो जाएगा, मेरा हंगर लेवल तो कम है, so that much of the next the need of next plate is not that much required to me। तो इसके हिसाब से क्या होता है, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी उसी प्रोडक्ट का कम होके जाता है। तो ये ग्राफ भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को शेयर किया था। उसमें क्या हुआ था, when we add the number of products in our consumption, in our use, so marginal utility of that product goes on decreases. Marginal utility of that product goes towards decreasing side. So these two graphs are crossing with each other, so that we have to decide the what is the marginal utility, and accordingly we can decide our level of activity, that is the production। ओके, उसके बाद हम लोगों ने ये इंडिफरेंस कर्व दिखाया था। सो दैट इज द इंडिफरेंस कर्व, यानी क्या किया था, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन हुआ था। तो इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल दिखाता है। तो दैट सेटिस्फेक्शन लेवल वी हैड टेकन विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू आइटम्स। सो आई कैन हैव आइसक्रीम एज वेल एज केक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, केक जितना भी मुझे सेटिस्फेक्शन देता है उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे कौन दे रहा है, आइसक्रीम भी दे रहा है। तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, जस्ट लुक टुवर्ड्स, if I want both the options or both the products to me at that time, I can make the certain combination। तो जितना प्रोडक्ट मुझे केक से सेटिस्फेक्शन मिलता है उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे आइसक्रीम से ही मिलने वाला है। So in that case, I can try as a customer, as a consumer, I can try the various products। तो एक केक मेरा प्रोडक्ट है, आइसक्रीम फॉर एग्जांपल है मेरे कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। So if I'm going to study the behavior of the consumer at that time, we need to understand this equilibrium। ओके, तो उसमें क्या है, जो एक केक खाएगा वो 12 आइसक्रीम खाने वाला। गेटिंग दिस? नाउ इफ ही adjust in place of one cake, if the person is giving 2 orders of the cake, at that time automatically क्या हो जाएगा, अगर केक के ऑर्डर उसका बढ़ी तो ऑटोमेटिकली आइसक्रीम खाने का उसकी कैपेसिटी कम होती है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? जब उसका केक के ऑर्डर बढ़ती है तो ऑन, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वन, हम लोग जब किसी फंक्शन में जाते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट अगर ज्यादा कंज्यूम किया तो दूसरे प्रोडक्ट खाने का कैपेसिटी ऑटोमेटिकली नीचे होती है। दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। समझ में आ रहा है? तो एक प्रोडक्ट हम लोग जो लेते हैं, तो इफ वी ऐड 2 केक्स इन आवर plate, so automatically we will reduce the quantity of ice cream, रोटी और राइस। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर हम लोग 3 केक खाएंगे तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा आइसक्रीम खाने की कैपेसिटी डिक्रीज हुई। 4 केक किया तो आइसक्रीम खाने की कैपेसिटी नीचे हो जाएगी। Now this diagram shows the indifference curves and any combination laying on this curve gives the same level of consumer satisfaction। तो जितना भी सेटिस्फेक्शन मुझे ए कॉम्बिनेशन में था उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे बी में मिलना है, सी में मिलने वाला है, फोर में मिलने, डी में मिलने वाला है। So if I utilize various combination like A, B, C, D,
during this combination my satisfaction level is not going to be changed, मेरा उतना ही रहेगा. What I'm doing, I'm just changing the proportion of two quantities. If there is a change increase in proportion of one quantity, automatically there will be the decrease in the proportion of other quantity, because it is regarding to law of diminishing return. इसके हिसाब से दूसरे प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली मेरा डिमांड कम हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूज लैपटॉप फॉर मोर टाइम, इसका मतलब ऑटोमेटिकली मोबाइल का यूटिलाइजेशन मेरा कम हो जाए. जितने भी प्रोडक्ट का एक्सेस एक्स्ट्रा हमारा एक्सेस होता है, ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है. तो यहाँ पे मैंने एक आपको ग्राफ दिखाया था, फूड एंड क्लॉथ. ठीक है, एक प्रोडक्ट का हम लोग जब ज्यादा यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोडक्ट का हमारा डिमांड कम होता है. दैट इज अबाउट द कंज्यूमर्स इंडिफरेंस कर्व. एंड ये कर्व कैसे जाते हैं, ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं होता है. आईसी शोज योर सेटिस्फेक्शन लेवल. ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, IC1, IC2, IC3, गुड एक्स एंड गुड वाई, और प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई के बारे में हिसाब बनाया. एक प्रोडक्ट बढ़ाया तो दूसरे प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन लेवल और दूसरे प्रोडक्ट के इम्पोर्टेंस या उसका कंजम्पशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है. दैट आई हैव शोन ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. दैट इज समथिंग अबाउट इंडिफरेंस कर्व. ओके, हाँ, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका था. ये सारा इसी का ही एक्सप्लेनेशन दिया है कि जैसे जैसे IC1 will have a certain amount of self satisfaction. IC2 means my satisfaction level is increasing than IC1. IC3 is about my satisfaction is level is more than IC1 and IC2. किसी का IC4 आएगा, IC5 आएगा, यानी हर एक का कैपेसिटी कुछ अलग है ना. समझ में आ रहा है. सपोज आई एम कंज्यूमिंग 2 रोटीज. I some people can utilize you consume can one roti, कोई 4 रोटी खाएगा, कोई 5 रोटी खाएगा. समझ में आ रहा है. So everybody's combination is different and it change as per the income capacity, as per the its need. तो लोगों के नीड से, लोगों की इनकम से ये कैपेसिटी चेंज होती है, और कैपेसिटी चेंज होने से हर एक लोगों का, हर एक प्रोडक्ट का इन कंज्यूम इंडिफरेंस कर्व चेंज होता है. यही हम लोगों ने इसमें एक एक्सप्लेन किया था. अभी हम लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्टडी करनी है. नो, before starting of this consumer equilibrium, just read this slide. I will explain you. First, try to understand what I have given, and just focus on the highlighted words. Consumer equilibrium क्या होता है? Just read this slide. Done. Finished, students? Now,
consumer equilibrium is one of the, it is the mindset of the consumer, it is the mindset of the consumer. Consumer equilibrium level यानी the level at which the consumer will get the highest kind of satisfaction, that is something about consumer equilibrium. For example, पहले मैंने एक केक खाया, फिर मुझे लगा कि चलो फिर बाद में नहीं मिलेगा और एक केक खाते, तो दूसरा भी केक खाया। तीसरे बार किसी और ने मुझे रिक्वेस्ट किया या फोर्स किया, नहीं ये तीसरा भी केक आपको खाना है, तो मैंने उसका रिक्वेस्ट मान गया, तीसरा भी केक खाया। अभी चौथा वाला दूसरा फ्रेंड आया और मुझे बोल रहा है कि सर ये भी आपको केक खाना है, उसने रिक्वेस्ट किया तो मैंने उसकी भी रिक्वेस्ट मान ली, तो 4 केक में मेरा पूरा पेट भर गया। अभी मेरा बॉस आया और बॉस बोला कि नहीं आपको ये केक खाना ही है, ठीक है। तभी भी मैंने फिर एक बार 5वां केक खाने का ट्राई किया, ठीक है। उसके बाद और एक पर्सन आया और उसने बोला कि अभी मुझे 6th वाला केक खाना है। नाउ माय कैपेसिटी हैज़ बीन ओवर्ड विदिन 4 और 5 केक्स, लेट अस से 5 केक। 5 केक में मेरा पूरा कैपेसिटी, पूरा स्ट्रेंथ निकल गया। एक केक खाते समय मेरा कुछ यूटिलाइजेशन था, टोटल यूटिलिटी था। 2 केक खाने में मेरा कुछ मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गया। उसके बाद थर्ड केक में मेरा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने चला गया, क्योंकि थर्ड केक का जितना भी मुझे जरूरी था, जितना जरूरी मुझे पहला केक या दूसरे केक की थी, उतना जरूरी मेरे लिए तीसरे केक की नहीं। इसलिए उसी प्रोडक्ट का मेरे लिए नीड कम होते गए। गेटिंग दिस मीन्स व्हाट, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वांटिटी अकॉर्डिंगली मार्जिनल यूटिलिटी वाज डिक्रीज। उसके बाद चौथा केक जब मैं खाऊंगा तब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ केक खाने के बाद फिर क्या हो गया, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गया एंड आई गॉट 100% सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? अभी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फोर्थ केक, तो फिफ्थ केक जब जब अगर मैं खाने जाऊंगा तो दैट टाइम अगर मैं खाऊंगा भी वो केक ना, दैट विल गिव एडवर्स इफेक्ट ऑन माय बॉडी, सो आई विल नॉट परचेस, आई विल नॉट कंज्यूम। तो आपको सेटिस्फेक्शन कितने, आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा आ गया आपका, कंज्यूमिंग 4 केक्स। उसमें क्या है, उतना 4 केक्स खाने से उसका इफेक्ट आपके बॉडी में फेवरेबल ही होने वाला है। अगर फिफ्थ केक खाया तो उसका असर आपके बॉडी में कैसा होने वाला है, एडवर्स होने वाला है। सो दैट यू हैव टू स्टॉप एट फोर्थ केक, the number of quantities which will give you the full amount of satisfaction, and further that quantity, further those quantity we will not consume extra unit, that position is called as a consumer equilibrium। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है कि जिस इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे आप लोग नहीं खाना पसंद नहीं करो, वो पोजीशन को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का कितना कैपेसिटी है, हाईएस्ट कैपेसिटी कितना है, ये हाईएस्ट कैपेसिटी मुझे जो दिखाता है ना, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज। अभी इस स्लाइड में मैंने जो लिखा है ना, वही लिखा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ हिज लिमिटेड इनकम। मेरे लिमिटेड इनकम के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि 2 शर्ट लेना है, 3 शर्ट लेना है या 1 शर्ट लेना, and accordingly I will decide my satisfaction। Okay, limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure, मुझे change नहीं करना है, ठीक है। So with respect to my limited income, with respect to my capacity, I will decide how many cakes I should purchase, how many cakes I should consume, and that level is nothing but equilibrium level। The consumer has to pay price for each unit of the commodity। अगर कुछ एक्स्ट्रा यूनिट भी हम लोगों ने लिया तो वी हैव टू पे द प्राइस, ठीक है। तो प्राइस पेमेंट करके ज्यादा यूनिट मैं परचेस करूंगा तो दैट एक्स्ट्रा यूनिट इज नॉट गोइंग टू गिव मी हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन।
इट मे बी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर मनी। इसका मतलब जितना पैसा हम लोग देने वाले हैं ना, उतना अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, दैट टाइम कंज्यूमर स्टॉप्स बाय। समझ में आ रहा है? जितने अमाउंट का हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार उस होटल में गए लेकिन खाना बहुत बकवास बकवास था। इसका मतलब क्या है? जितना पेमेंट हम लोग उस खाने के लिए कर रहे हैं ना, उतना सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? अरे कभी कभी बोलते खाना बहुत बेस्ट, इसका मतलब प्राइस के कंपैरिजन में उसका यूटिलिटी, उसका कंजम्पशन का वैल्यू बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करते हैं कि मेरे प्राइस के हिसाब से मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर क्वांटिटी कंज्यूम करूंगा एंड आई विल कंपेयर प्राइस विद द प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस विद द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? अगर वैल्यू ऑफ दैट एक्स्ट्रा यूनिट इफ इट इज मोर देन माय प्राइस, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट कम कीमत कीमत में आता है, कम वैल्यू में आता है, तब दैट टाइम आई कैन यूटिलाइज, आई कैन कंज्यूम। क्योंकि market price or value of that product is greater than price of that product। अगर ये उल्टा होता है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो हम लोग बाइंग स्टॉप करते हैं। ठीक है? तो जिस स्टेज को हम लोग ये एक्स्ट्रा बाइंग स्टॉप करते हैं, उसी स्टेज को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बिकॉज वॉट एवर प्रोडक्ट वी विल बी परचेसिंग फ्रॉम द मार्केट, दिस आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए पैसा देना ही देना है, इसलिए हम लोग इमीडिएटली स्टॉप करते हैं एट पर्टिकुलर लेवल को, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल। अभी देखिए, अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन इनकम परचेसिंग वन और मोर कमोडिटीज सो दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो प्रोडक्ट तो ऐसे सस्ते में या फ्री में नहीं आ रहा है, मेरा पैसा भी जा रहा है। गेटिंग दिस? So the level at which consumer is getting maximum satisfaction and no urge to change his level of consumption, और उसको फिर लेवल ऑफ कंजम्पशन चेंज करने की उसकी इच्छा नहीं है, is known as a consumer equilibrium। Okay, this is one of the important concept in demand estimation and demand analysis। So just try to understand the consumer equilibrium। Then what are the assumptions for attaining the consumer equilibrium? So consumer equilibrium as an organization, as a company, as a sales manager, as an economist, to understand the consumer equilibrium, what are the assumptions are there? First is the consumer is rational and thus attempt to maximum his or her utility। कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर को रियल सिचुएशन का अंदाजा है, और वो रियल सिचुएशन मार्केट का स्टडी है, उसकी खुद का भी एफिशिएंसीज पता है, इनकम लेवल पता है, उसके हिसाब से ही विल मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उतना वो खरीद कर। दूसरा असम्पशन ये है, फिक्स लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का लेवल ऑफ इनकम, उसका जो अर्निंग है वो फिक्स है, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। अगर अर्निंग चेंज हो गया तो उसका प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा सैलरी डबल हो गया तो मेरे ब्रांड चेंज हो जाएगा। गेटिंग दिस? अगर मेरा इंक्रीमेंट हो गया तो पहले मैं जितना भी परचेस करता था गुड्स एंड सर्विसेज, उससे ज्यादा परचेस करूंगा क्योंकि मेरा इनकम बढ़ रहा है। अगर मेरा इनकम स्टेडी है, एट दैट टाइम माई यूटिलिटीज विल बी ऑल्सो स्टेडी। ओके, एंड फिक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस बदलने वाले नहीं है। अगर कमोडिटी के प्राइस बदल गए तभी भी मैं चेंज क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करने का ट्राई करूँ, जबकि फॉल इन मार्केट प्राइस हो। अगर मार्केट प्राइस भी स्टेबल है, तब जाके मेरा अर्ज नहीं होगा कि एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करना। सो व्हाइल स्टडिंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वी हैव टू अज्यूम दीज assumptions। पहला, कंज्यूमर इज रैशनल एंड ही नो हाउ टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, उसकी इनकम लेवल भी फिक्स है और कमोडिटी की प्राइस भी फिक्स है। सो दीज आर द assumptions। ओके, नाउ यहाँ पे एक टेक्निकली मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट सच ए लेवल, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है? देखिए, कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम level where marginal utility derived from consumption of the commodity is equal to 1 unit of the price।
यूनिट वाइज मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर ने कैलकुलेशन किया है। मार्जिनल यूटिलिटी मींस व्हाट, एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं वो भी देखा था। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी लेवल है, टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मार्जिनल यूटिलिटी, इट डिक्रीजेस। ठीक है। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज डिनोटेड बाय MU. How it is going to be calculated? Total utility of n plus 1 product minus total utility of n. So it is the difference between these two utilities. That is something about marginal utilities. And n is the number of units to be consumed. So marginal utility goes on decreasing when we add extra unit. ये तो ध्यान में आया। उसके बाद a point at which a consumer would attain equilibrium. एक जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन लेता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी उसके बाद वो ज्यादा कंजम्पशन अवॉइड करेगा या स्टॉप करेगा, उसी पोजीशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी वुड बी एक्सप्रेस बाय which is expressed by MUX is equal to PX. PX यानी प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसी प्रोडक्ट का प्राइस इक्वल होती है तब तक वो क्या करेगा, प्रोडक्ट्स परचेस करेगा। गेटिंग दिस? अगर मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग देन प्राइस यूटिलिटी, तब वो क्या करेगा, स्टॉप करेगा। इसका मतलब तब हम लोग स्टार्ट करते कि यार खाना बहुत बकवास था, जितना पैसा दिया ना उतने क्वालिटी का मुझे खाना नहीं मिला। क्यों? बिकॉज MUX is not equal to PX. P stands for price of the product and MU is the marginal utility of X number of product. जब marginal utility is more than your price, then you start consuming. जब मार्जिनल यूटिलिटी कोई प्रोडक्ट का ज्यादा है इससे उसी प्रोडक्ट के प्राइस से, तब आप लोग वो प्रोडक्ट परचेज करोगे। लेकिन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस जब इक्वल हो जाएंगे, दैट पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस एंड प्राइस विल बी सेम। सो एट दैट टाइम मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन योर प्राइस। सो एट दैट टाइम you should not purchase the product. आप purchase करना stop करोगे and you will not purchase the product because that product will not give you satisfaction. तो इसके पहले जो पॉइंट को आप लोग रुकते हैं ना, उसको बोलते हैं मार्जिन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। Here stands for the price of one unit of commodity X and MU stands for marginal utility. ये इसका explanation दिया है। Now, a consumer would continue to purchase more or less of the commodity until such marginal utility derived from it meets the price of the commodity. यानी MUX is equal to PX जब तक अचीव नहीं होता है ना, तब तक हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स परचेस करके जाएंगे। जब वो इक्वल होगा उधर हम लोग स्टॉप करेंगे, यही मीनिंग है। इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज हायर देन द प्राइस, जब ज्यादा होती है, MUX इज ग्रेटर देन, तो तब तक कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस करके जाए। जब ये नीचे आती है, प्राइस लेवल से भी नीचे आती है, तब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर देन इट्स प्राइस, प्राइस से भी वो नीचे आती है यूटिलिटी की वैल्यू, the consumer would reduce his consumption. कंज्यूमर क्या करेगा, स्टॉप करेगा। until marginal utility climbs down, climbs back, यानी जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर नहीं जाती, जब तक आपको नेक्स्ट उसकी नीड नहीं लगेगी, तब तक आप लोग क्या करेंगे, उसी स्टेज पे स्टॉप हो जाएगा। मीन्स योर लेवल ऑफ एक्टिविटी इज बाइंग 4 केक्स, बाइंग 2 शर्ट्स, उसी स्टेज पे आप लोग रुक गए। So that is something about consumers equilibrium. अभी देखिए यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल दिखाया है आपको, जस्ट ट्राई टू, अभी जो कुछ यहाँ पे दिखा है ना, देखिए फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ यूनिट्स, जस्ट लुक एट द टेबल। अभी ये जो एक्सप्लेनेशन ये है ना, ये इधर पहले मैं टेबल पहले एक्सप्लेन करता। नंबर ऑफ यूनिट्स आर देयर 1 2 3 4 5, देन 1 मिनट, इसको ना इधर लेगा, हाँ। Then you have marginal utility of a packet of chips.
that utility level is also given over here and price of product is given. देखिए मेरा डिमांड बढ़ता जाएगा, मेरा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट अकॉर्डिंगली मेरा मार्जिनल यूटिलिटी एडिशन ऑफ वन यूनिट डिक्रीजेस योर मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। उसके हिसाब से क्या होता है, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 होते जाएगा। ओके, so let us look towards unit number 1. When I purchase or when I consume unit 1, at that time my marginal utility is, for example, 50 utils. Okay, and at that time price of product, one product is 10 rupees per unit. Then when I purchase second product, at that time my marginal utility decreases up to 35, and the price of the per unit is equal to 20. Okay, so 35 is more than 10. Getting this? 35 is more than 10 means what? Again, I will try to purchase one next product, that is the 3, where also your marginal utility is decreasing to 20 and price of that product per unit is rupees 10. Again, in this case, marginal utility is greater than price of the product. Then if you consume more next product, that is the 4, at that time my marginal utility is equal to 10 in the value of rupees 10 and price of the product is also rupees 10. So this point is called as equilibrium point. Uske baad, if we add one more product, that time marginal utility value is 4 5 and price of the product is 10. Means what? Marginal utility value is less than price of product. At that time this will be not favorable to you and you will not purchase the fifth product because marginal utility is less than your price of the product. So where you will stop the product purchasing the product at the fourth unit. जब ये प्राइस यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल पॉइंट पे होती है, उसी पॉइंट के बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एज अ कस्टमर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ इकोनॉमिस्ट, वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड दिस मार्जिनल इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अभी इसका ये जो चार्ट, ये जो यहाँ पे जो टेबल दिखाया है ना, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ऊपर जो कुछ है वो केस स्टडी ली है। ओके, जब ये कंज्यूमर्स निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव साइड को जाती है ना, यूटिलिटी निगेटिव यूटिलिटी होती है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन कंज्यूम करना स्टॉप करते हैं। नाउ द सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो वी हैव क्वांटिटी ऑफ एक्स on x axis and price of that product is shown into the y on the y axis. Then horizontally ppx मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, दैट इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। तो ये प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सबके लिए 10 रुपए फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, मार्जिनल व्हेन वी ऐड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑन एक्स एक्सिस, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लेंगे ना, उसके हिसाब से ये मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे नीचे 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 आएगी। ठीक है, कब तक आप परचेस करोगे प्रोडक्ट? अप टू पॉइंट ई तक हम लोग क्या करोगे, पॉइंट प्रोडक्ट परचेस करोगे। क्यों परचेस करोगे? बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इधर तक क्या है, ये जो ऊपर वाला रीजन है ना, इधर तक तो ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये दोनों सेम हो गए। उसके बाद तो इधर हम लोगों ने स्टॉप नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्राइस से कम उसके एडवांटेजेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इट गोज टुवर्ड्स द नेगेटिव ट्रेंड एंड वी विल स्टॉप बाइंग द प्रोडक्ट एट दिस पॉइंट पी। ये पी पॉइंट पे हम लोग स्टॉप करते हैं। सो एज अ कंज्यूमर we need to understand our consumers equilibrium. As a businessman, as an economist, we need to understand the consumers equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आने तक ही परचेस करता है, उसके नीचे कभी भी वो परचेस नहीं करता है। तो हम लोगों को कितना प्रोडक्शन करना है, जब तक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर सप्लाई किया तभी भी कंज्यूमर लेगा नहीं, जिसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी।
वही ग्राफ मैंने फिर एक बार क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करके 1 2 3 4 में दिखाया है। दिस इज द प्रॉफिट लेवल, दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड इसके हिसाब से ना ये यहाँ पे रिप्रेजेंट मैंने किया है। ओके, so this is the graph of consumer equilibrium. Do you have any doubt regarding to this? Yes, students, if you have any doubt you can ask me, otherwise we are going to stop here. Understood consumer's equilibrium, because next unit next article depend on this consumer's equilibrium, demand forecasting. Yes, tell me fast. Everybody is clear with consumer's equilibrium, yes or no? Yes, sir. Okay, so let us stop today here only, क्योंकि नया जो टॉपिक है डिमांड फोरकास्टिंग एंड डिमांड एस्टिमेशन, तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद डिमांड एनालिसिस, और वो बहुत बड़ा है, अभी 5-10 मिनट वो खत्म नहीं होने वाला है। सो वी विल स्टार्ट this demand, we will start with demand analysis to the next lecture. Okay, so let us stop here. Thank you so much. Thank you, sir. हाँ, bye. Thank you, sir. Yes.